In the previous lecture, we discussed a couple of physical applications of first order differential equations, and I told you that we shall start discussing first order differential equations and how to solve them. So today we are going to discuss techniques for solving first order ODEs particularly. First of all, a couple of notations. How do we denote first order differential equations? So in general, we can denote first order differential equation in this form: dy by dx is equal to f of xy. So where f of xy is a function of x and y. So this is, for example, you can say that dy by dx is equal to x. Maybe हमने वो जो example की थी x into y power 1 by 2. This is an example of this kind of first order differential equation. Now, another form, which is the general linear form, a1 of x dy by dx plus a naught of x y equal to some function, maybe g of x. This is the general linear first order differential equation. We have discussed it in the previous lecture. With this differential equation can also be converted into dy by dx plus some function p of x y is equal to some other function, maybe f of x. This is the standard linear equation or linear ODE, the standard form of the linear ODE. Another notation of the first order differential equation, which I told you, is m of xy dx plus n of xy dy equal to 0. Now this form can be converted into by taking the derivative. This form can be converted into the previous forms. For example, if we write n of xy dy equal to negative of x m of xy dx. Now this can be further written as dy by dx is equal to minus m xy divided by n of xy, which is again the function of xy. So, sorry. This is again the another form of the first order differential equation. Now, today we are going to discuss the first technique in order to solve the first order differential equation is separable differential equation. Separable ODEs. You can say this. Separable ODEs are of the form: if a differential equation dy by dx, it is basically, you can say, g of x times h of y, is of this form, then this is basically a separable ODE. Why we call it separable ODE? Because we can separate the variables in this differential equation. How we can separate the variables? We can divide this h of y on the other side, and we can write 1 over h of y dy. We can multiply this dx on the other side, g of x dx. So now you can see that we have separated the variables x and y. We normally keep the y on the left hand side
so that when we solve it, we get the solution in explicit form. I shall tell you what is an explicit solution after solving this. So 1 over h of y dy, g of x dx. Variables have been separated completely. There is no x here and there is no y on the right hand side. Now, we can integrate this equation on both sides. Now, integrating both sides, we obtain what? 1 over h of y dy is equal to integral g of x dx plus a constant of integration. Now, for example, we say that the integral of 1 over h of y is capital H of y. Okay, and the integral of g of x is capital G of x plus c. So this will be your solution of the given differential equation. I hope you get it. If you have any question, you can ask me. So this is how we can solve a Sir? separate. Yes, beta, yes. Sir, won't the constant of integration come on both sides? Yes, we should have added it on both sides, but it is sufficient to add on one side. अगर आप दोनों sides पे constant of integration add करते हैं, for example, आपने यहाँ पे भी integration की, for example, h of y आ गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे c1 और right hand side पे आपने integration की, तो आपके पास g of x plus c2 आ गया, ठीक है. Now we can take this c1 on the other side and we can write again h of y is equal to g of x plus c2 minus c1. So these are two constants which can be combined, c2 minus c1. So now we can call this one another constant c. ठीक है, तो ultimately हमारे पास क्या आ जाएगा, h of y is equal to g of x plus c. ठीक है, so it doesn't matter you add constants on both sides or on any one of the side. ठीक है, तो अल्टीमेटली एक कांस्टेंट दूसरी साइड पे चला जाएगा तो वो एक ही कांस्टेंट होगा. ठीक है, अच्छा, so this will be your solution of the given differential equation. ठीक है, this is how we solve separable differential equations, separable first order ODEs. This is one of the technique for solving this kind of differential equations. Only this kind of differential equations can be solved by using this technique, this one, in which we can separate the variables g of x, h of y. For example, अगर हमारे पास कोई भी differential equation है, let me use the other board, maybe this one. Examples. Yeah, example 1, maybe. Solve the ODE of first order, this one. dy by dx is equal to y square x e raised power 3x. Now, you can see that in this differential equation, we can separate the variables. So this is a function of y and this is a function of x. We can separate these two functions. So we can write this differential equation in this form, g of x times h of y.
ठीक है? Now, we have to divide a function of y on the left-hand side, and we obtain 1 over y squared dy is equal to x e raised to power 3x into dx. So we have separated the variables x and y. Okay? The variables should be completely separated. On one side, you should have only x, and on the other side, you should have only y. Now, by integrating both sides, we can, and by adding, while you start integrating, you have to add the constant c on any one of these two sides. Now, this can be integrated now, which is basically negative y power minus 2 plus 1 over minus 2 plus 1 is equal to, यहाँ पे we have to use integration by parts, which gives us x e raised to power 3x divided by 3 minus x के derivative 1 integral of e3x by 3 dx plus c. I hope you can do the integration as you have already taken the course of Calculus 1 and you have studied techniques of integrations very well. So this can be written as minus 1 over y, and on the right hand side we have 1 by 3 x e raised to power 3x and negative 1 over 3 बाहर आ जाएगा, e raised to power 3x का integral again e raised to power 3x divided by 3, so we must have 1 by 9 e raised to power 3x plus c. So this is your required solution of the given differential equation. This one. I hope you get it, how to solve a separable first order differential equation. If you have any question, you can ask me. You just raise your hand and I'll basically allow you to. Let me check, is there a. Okay, this is one of the examples. This technique, remember that this technique can only be applied. This technique can only be applied when the differential equation, in the differential equation, the variables can be separated. Okay, so that's why we call it separable differential equation. For the differential equation which are not separable, for example, let me give you some example in which we cannot separate the variables. Then that differential equation cannot be solved by using this technique. For example, dy by dx is equal to x squared plus y. Or you can say x squared plus xy plus y squared. Now, can we separate the variables x and y in this example? No, we cannot separate here x and y. So this is an example of non-separable ODE, and we cannot solve this differential equation using the separable technique. Now let me write another example and we solve that example using the similar technique. For example, the differential equation is in the form, maybe e raised to power 2y minus y times cos x dy by dx is equal to e raised to power y sine 2x. Okay, so this is another example which we are going to solve here. Now you can see that the variables can be separated here
we have a function of y here, we have a function of x here, we have a function of x here, and we have a function of y here. I hope you can separate the variables in this differential equation. So we can write here e raised power 2y minus y divided by e raised power y dy is equal to sine 2x divided by cosine of x into dx. Now, you can see that we have separated the variables y on the left hand side and x on the right hand side. There is no y on the right hand side here, and there is no x in this term on the left hand side. So we have separated the variables. Now, what we have to do further, we have to integrate both sides. So integrating both sides and by adding a constant of integration. Now, what is left to solve this differential equation? It is only the integration. Now, your integration techniques should be very, very strong in order to solve the differential equation. Okay? You have to revise your integration techniques to solve these differential equations. Now, we can simplify the calculations here. For example, EY से आप इसको multiply कर दें, separate कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? E raised power y minus y e raised power minus y integral dy is equal to, अब sin 2x किसके equal होता है? Sin 2x is 2 sin x cos x. Trigonometric identities को use करें अगर हम, तो यहाँ पे cos और cos cancel हो जाएगा, तो आपके पास 2 integral of sin x dx plus c आ गई. I hope you can solve these integrations. On the left hand side, e raised power y की integral e raised power y ही होगा. यहाँ पे आपको integration by parts लगानी होगी, और sin का integral क्या होगा? Minus cos plus c. So after solving these integrations, you can get the answer, which would be the solution of the given differential equation. Now, 7 people are waiting to join the meeting. So once I told you earlier that try to join this meeting before 12 o'clock. Once I start teaching on the board, it would be difficult for me to go back and press the button each time to add you. I hope you get it. If you have any question, you can ask me. This is how we solve the separable differential equations. Let's have another example for the people who just join in. Example. Not example 3, it is example 4. One minus one plus. Maybe 1 plus x dy minus y dx equal to 0. We need to solve this differential equation. Sorry. We can see that we can separate the variables. So यहाँ पे with dx you have y, and with dy you have 1 over x. So we can separate them in this way. 1 plus x dy equal to plus y dx. यहाँ पे y को उधर divide कर दें, 1 plus x को इधर divide कर दें. What do you get? 1 over y dy is equal to 1 over 1 plus x dx. We have separated the variables. Now what is left? We need to integrate both sides. Integral of this plus c.
Now, what is the integral of this? Natural log of y is equal to natural log of, you can say 1 plus x, ठीक है, प्लस c. यहां पे ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है. Remember that we can change the form of an integration constant according to, in fact, in order to simplify the solution. यहाँ पे c को मैं नेचुरल लॉग ऑफ c लिख रहा हूँ, या यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ c नॉट लिख रहा हूँ, ठीक है. अब कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है. अब मेरी मर्जी के कांस्टेंट को क्या लिखूं. In order to simplify the solution, I can write the c in any form. अब c को नेचुरल लॉग ऑफ c लिख लें, e पावर c लिख लें, 1/c लिख लें, so that solution आपका सिंप्लीफाई हो जाए. अगर आप ना भी लिखें, c लिखे रहने दें, फिर भी ठीक है, it doesn't change anything. बट मैंने यहाँ पे c को नेचुरल लॉग ऑफ c क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ y और ये लॉग ऑफ 1 plus x plus log of c naught है. तो ये log की प्रॉपर्टी we can use here and we can write it natural log of c naught times 1 plus x. ठीक है. अब नेचुरल लॉग दोनों साइड से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं and we can get the solution y is equal to c naught 1 plus x. This one. This is your solution. ठीक है. अगर आप इसको नहीं लिखते c को नेचुरल लॉग ऑफ c नॉट, तो सॉल्यूशन किस टाइप का होगा? यहां से आगे हमने फिर जाना है, तो आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस c होगा. ये अब यहाँ पे नेचुरल लॉग जब दूसरी साइड पे जाएगा, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल लॉग, वी कैन राइट y इज इक्वल टू e रेज़ पावर नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस c. ठीक है. अब यहां पे e रेज़ पावर लॉग है, ये लॉग के साथ e कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स टाइम्स e रेज़ पावर c. क्योंकि इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, मैंने एक स्टेप इसको, e रेज़ पावर नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स है टाइम्स e रेज़ पावर c लिख सकते हैं हम. ठीक है. अब यहां पे e और log कैंसिल हो जाएंगे. व्हाट डू वी गेट, 1 प्लस एक्स टाइम्स e रेज़ पावर c. अब ये आपके पास जो e रेज़ पावर c है, ये कांस्टेंट है, e रेज़ पावर c. हम इसको कोई और कांस्टेंट कह देते हैं, c नॉट. ठीक है. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, c नॉट टाइम्स 1 प्लस एक्स. तो सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आया, आपके पास उसी टाइप का सॉल्यूशन आया जो कि पहले हमारे पास सॉल्यूशन था. आई होप यू गेट इट कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द सॉल्यूशन, हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कुछ भी लिख सकते हैं, जो अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी कैन राइट एनीथिंग दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. यहां पे मैंने c को log ऑफ c नॉट लिख लिया. अगर नहीं लिखेंगे तो फिर भी आपके पास यहां पे e पावर c आ रहा है, विच इज अ कांस्टेंट. e पावर c कांस्टेंट है, उसको हम कोई और कांस्टेंट c नॉट या c1 कुछ भी लिख सकते हैं. तो आपके पास अल्टीमेटली सॉल्यूशन दोनों फॉर्म्स में सेम आया. ठीक है. ये आपके पास सॉल्यूशन है. आई होप यू गेट इट. इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन, you can ask me. अब देखिए, वन मोर थिंग, ये आपके पास जो सॉल्यूशन आया है, इसमें एक अननोन कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नॉर्मली क्या होता है, दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन normally belongs to r. It is an arbitrary constant. It can take any value. So this c naught is basically, it belongs to r. C naught is any real number. It is an arbitrary constant. अगर c naught को की वैल्यू चेंज हो, तो आपके पास कितने सॉल्यूशंस आए आपके पास? ये
अगर सी नॉट आर को बिलोंग करता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो सी नॉट कैन टेक इनफिनिट मैनी वैल्यूज। तो आपके पास ये जो सोल्यूशन आया है y इज इक्वल टू सी नॉट टाइम्स 1 प्लस एक्स। अगर सी नॉट की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। x माइनस 1 पे ये 0 होगा और 0 पे ये -1 होगा। ठीक है, x y 0 पे -1 होगा और x 0 पे ये y 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह की स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अगर सी नॉट की वैल्यू 1 है, अगर सी नॉट की वैल्यू में चेंज करता हूं, सी नॉट की वैल्यू में 2 रख देता हूं। ठीक है सॉरी, तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी, एक और स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, सी नॉट की वैल्यू 3 रख देता हूं तो आपके पास एक और स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो आपके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और ये सारी की सारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे के। ठीक है, पैरेलल होंगी नहीं, पैरेलल नहीं होंगी इस तरह। देखिए, अगर सी नॉट की वैल्यू 2 होगी तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स। तो -1 पे अगेन ये 0 होगा, और अगर इसको 0 पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, अगेन 1 आएगी। इसको 0 पुट करेंगे तो y 2 आ जाएगा। तो आपके पास सोल्यूशन क्या होगा, -1 और 2, दिस वन। पहले वाली लाइन यहाँ पे 1 से पास कर रही थी, अब आपके पास, हाँ, दिस वॉज योर लाइन 1 व्हेन यू हैव सी नॉट इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे सी नॉट की वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं तो ये लाइन आएगी। अगर सी नॉट की वैल्यू 3 लेंगे तो ये 3 से पास करेगी, इस टाइप की लाइन होगी। सो अगर सी नॉट की वैल्यू कम करते जाएंगे तो आपके पास अगर सी नॉट की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास एक्स एक्सिस होगा, और सी नॉट की वैल्यू अगर -1 है तो ये बेसिकली यहां से पास करेगा -1 से। ठीक है, तो आपके पास कितनी लाइंस होंगी, इनफिनिट मैनी लाइंस होंगी। इस तरह की लाइंस आपके पास बनेंगी। तो आपके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्यों, क्योंकि सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जब भी हम किसी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक दफा इंटीग्रेशन होनी है। ठीक है, इन ऑर्डर टू सॉल्व अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, when you solve that differential equation you have to perform integration one time। एक दफा इंटीग्रल लेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को 2 दफा इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आएगा, या डेरिवेटिव कैंसिल होगा, तो उसमें 2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के, let me write it here। One parameter family of solutions। Now, what is this one parameter family of solutions? It is basically when you solve a first order ODE, आप कह सकते हैं solving ODE of order 1, we obtain one
arbitrary constant. Constant, which is the constant of integration in the solution. ठीक है. और अगर हम कहें कि इन जनरल सॉल्यूशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो होगा वो क्या किस टाइप का होगा, उसमें x होगा, y होगा और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा. ठीक है. So in general this is how we can write the solution. तो ये सॉल्यूशन जो होगा इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा c. इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम कहेंगे is a family of या one parameter family of solutions. Is a one parameter family of solutions. ठीक है. अब two parameter family of solutions क्या होगा? When we solve a second order differential equation, ठीक है, we obtain two arbitrary constants which are the constants of integration. ठीक है. तो आपके पास जो family of solutions होगी उसमें दो constants आएंगे. ठीक है. और in addition, remember that when you have one parameter of family of solutions, so ये C जो है, this should belongs to some real line on real this belongs to real numbers. ठीक है. This is arbitrary constant. अगर इसकी values को आप vary करेंगे तो आपके पास कितने solutions आएंगे? Infinite many solutions आएंगे. ठीक है. अगर आपके पास टू पैरामीटर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपके पास क्या होगा? टू पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस आएगा जिसको हम व्हेन वी सॉल्व द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो व्हाइल सॉल्विंग सेकेंड ऑर्डर ODE, we obtain two arbitrary constants, say C1 and C2. ठीक है. And we write in general, and we write in general as the solution. You can say g of x, y, c1 and c2 equal to 0. अब आपके पास again c1 और c2 क्या है? they belongs to R. ठीक है. अब आपके पास ज्यादा बड़ी फैमिली होगी ऑफ सॉल्यूशंस की, क्योंकि C1 को भी वेरी करेंगे, C2 को भी वेरी करेंगे, तो आपके पास ज्यादा बड़ी फैमिली ऑफ सॉल्यूशन होगी. इन जनरल अगर आपके पास nth ऑर्डर सॉल्विंग nth ऑर्डर ODE, आपके पास कितने पैरामीटर्स आएंगे? n पैरामीटर्स आएंगे. तो उसको हम कैसे लिखेंगे? g of x, y, c1, c2, so on, cn. It must have n parameter arbitrary constants in the solution, and this is called n parameter family of solution. I hope you get it. If you have any question, you can ask me. Now, there are some other kind of solutions, types of solutions: explicit solution and implicit solution. Explicit solution is basically an explicit function, a solution which is an explicit function of x. जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं y जो है वो function of x है. ठीक है. तो if we can write
solution of the differential equation as an explicit function, then this solution is called explicit solution. ठीक है? I hope you know what is explicit and implicit functions. आपने कैलकुलस में पढ़े होंगे, ठीक है? अगर किसी को नहीं आता तो you can ask me any question. Now, this solution is what? It is a kind of explicit solution. ठीक है? Why we call it explicit solution? Because the solution is explicit function of x. Whereas in the first example or in the third example जो कि हमने यहाँ पे solution find किया था, वो implicit solution था. और implicit solution क्या होता है? जिसमें x और y को आप separate ना कर सके. That is, we cannot write the solution in the form y is equal to f of x. In general, हम इस तरह के solution को implicit solution कहते हैं. And we write it in this form, maybe g of x, y equal to 0. Okay? क्योंकि इसमें हम we cannot separate x and y. So implicit solution is normally written in this form. Now, if you have any question regarding the separable differential equations, one parameter family of solutions, two parameter family of solutions, you can ask me any question. सर एक क्वेश्चन था वो जो सॉल्विंग सेकंड ऑर्डर ओडीयू का था जी जी वो सर ये था कि जब सेकंड ऑर्डर या इससे कोई हायर ऑर्डर्स को हम सॉल्व करते हैं तो हम एक एक करके इंटीग्रेट करते हैं तो कभी ये नहीं होता कि जो कांस्टेंट आता है वो एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग आ जाता है rather than belonging to real numbers directly. फंक्शन ऑफ समथिंग तो कांस्टेंट नहीं आ सकता ना. देखो जब आप इंटीग्रल हाँ जब से एक दफा इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू dx तो वो फंक्शन ऑफ y भी आ सकता है उस तरह फंक्शन ऑफ y भी आ सकता है. वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स में नहीं आता, वो सिंपल कांस्टेंट हम लिखते हैं. लेकिन जब आप पार्शियल डेरिवेटिव्स को सॉल्व करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को, तो हम आगे जाके देखेंगे एग्जैक्ट इक्वेशंस जो होती हैं. एक टेक्निक है जिसमें हम इंटीग्रल लेते हैं रिस्पेक्ट टू x या y. उसमें किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल लेंगे तो दूसरे वेरिएबल को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं. तो उस केस में आपके पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो फंक्शन ऑफ x या y आ सकता है. लेकिन सेपरेबल जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इसमें आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ सिंपल कांस्टेंट आएगा. इसी तरह जब आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें भी जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको सॉल्व करने की, उसमें जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो रियल नंबर ही होगा, फंक्शन ऑफ x या y नहीं होगा. इवन यू इंटीग्रेट द डेरिवेटिव 2 टाइम्स अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है. Can you repeat your question? What was your question? नहीं सर समझ आ गया वो पार्शियल वाली की बात थी वो पार्शियल, वो जब आप पार्शियल मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें x और y अगर इन्वॉल्व हैं, x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू y आएगा. वो डिफरेंट है, वो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में जाके उसको डिस्कस करेंगे. बट फॉर द टाइम नाउ for now, what is this one parameter family of solution? First order differential equation है, तो solution find करने के लिए एक दफा इंटीग्रेट करनी पड़ेगी. एक दफा इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट. तो आपके पास अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है सॉल्यूशन में, तो अगर उस कांस्टेंट की वैल्यू को हम वेरी करें तो आपके पास इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस आएंगे. ठीक है. तो ये एक फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस होगी. ठीक है. अब इस फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस को हम वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे. ठीक है. हमने एक पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग. ठीक है. अब ये जो आपके पास वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन आया है, इसमें से कौन सा सॉल्यूशन
होगा जो आपको रिक्वायर है। देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। अगर किसी को नहीं पता तो यू कैन सी इन द प्रीवियस लेक्चर, रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, यू कैन सी दैट रिकॉर्डिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या था? अनदर एग्जांपल अगर हम यहां पे देखें, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, हमने डिराइव किया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर of any body is proportional to the temperature of a body at any time t minus the temperature of the surrounding Tm. Okay. So this was basically the first order differential equation which we obtained when we discussed the Newton law of cooling. अब इस differential equation को आप देखें तो this is a separable differential equation. We can write it 1 over t minus tm dt is equal to k times dt. ठीक है, where small t is the time and capital T is the temperature. अब इसको अगर इंटीग्रेट करें तो आपके पास where k is some constant, non-constant, tm is also some constant. तो आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ t minus tm is equal to k times x plus c, where c is what? C is the arbitrary constant which is the constant of integration. ठीक है, बाकी जो constant होंगे they are some specific constant, they are fixed constant, but this c is arbitrary constant which belongs to r. अब आपके पास अगर इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आएगा, अगर नेचुरल लॉग इसके इक्वल है तो इसको हम लिख सकते हैं t माइनस टी एम इज इक्वल टू ई रेज पावर के एक्स प्लस सी, विच फर्दर कैन बी रिटन एज t इज इक्वल टू टी एम प्लस ई रेज पावर के एक्स इंटू ई रेज पावर सी. ठीक है, अब ई रेज पावर सी को मैं अपनी आसानी के लिए मैं इसको लिख लेता हूं सी नॉट ई रेज पावर के एक्स. ठीक है, ये आपके पास सोल्यूशन आ गया. ठीक है, एंड दिस सोल्यूशन इज बेसिकली फंक्शन ऑफ टाइम t. दिस tm इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चाय का कप है जो हमने अभी अभी चूल्हे से मतलब चाय उतार के तो कप में डाल दिया. उसका टेम्परेचर जो होगा, इनिशियल टेम्परेचर हम अस्यूम करते हैं, हमने टेम्परेचर की कोई डिवाइस है उससे हमने मेजर कर लिया, इनिशियल टेम्परेचर उसका 100 डिग्री है. ठीक है, और जो रूम टेम्परेचर है Tm, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. रूम टेम्परेचर आजकल क्या होता है, 30 डिग्री होगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे Tm को 30 डिग्री ले लेते हैं. ठीक है, प्लस सी नॉट ई रेज़ पावर के एक्स. ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है ये डिपेंड करता है सब्सटेंस पे जिसका टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हो. अब चाय क्या है, एक लिक्विड है. ठीक है, तो लिक्विड की जो यहाँ पे हीट कैपेसिटी वगैरह या जो फिजिकल कांस्टेंट है, हम अस्यूम करते हैं कि ये 0.5 है, ये 1/2 आप कह सकते हैं इसको, ये 1/2 है टाइम्स एक्स. अब आपके पास यहाँ पे टी ऑफ टी है. आपके पास कितने सॉल्यूशंस हैं इसके? अगर सी नॉट इन्वॉल्व रहता है यहाँ पे तो आपके पास कितने सॉल्यूशंस होंगे? इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे. लेकिन आपका जो पर्टिकुलर केस है, आपका जो चाय का कप है, ठीक है, उस पर अगर हम एक एडिशनल कंडीशन लगा दें. एडिशनल कंडीशन क्या है कि इनिशियली जो ही आपने चाय कप में डाली तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री था. तो ये हम एक एडिशनल कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं कि चाय का टेम्परेचर जो है इनिशियली था T टेम्परेचर एट टाइम T इज इक्वल टू 0 इज 100 डिग्री. ठीक है, ये हमने एक एडिशनल कंडीशन लगाई along with the given differential equation. This condition is called initial condition. इनिशियल कंडीशन हम इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि आपका जो फिजिकल फिनोमेना है
उसके स्टार्टिंग टाइम पे आप ये कंडीशन लगा रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम पे yes, that is kt not kx, थैंक यू। क्योंकि अगर आप नीचे टाइम dt है तो इंटेग्रल लेंगे तो आपके पास kt आएगा ना, kx नहीं आएगा। यहाँ पे kt होगा, थैंक यू वेरी मच, kt एंड kt 1/2t, हाँ यहाँ पे। अब हमने ये एक एडिशनल कंडीशन लगाई कि इनिशियली आपका जो टेम्परेचर था चाय का वो क्या था, ठीक है। ये कंडीशन हम इसको क्या कहेंगे, इनिशियल कंडीशन। ये इनिशियल कंडीशन, इसको डिफाइन करने का क्या फायदा है, अगर हम इस इनिशियल कंडीशन को यूज करें तो ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसको हम फाइंड कर सकते हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग इनिशियल कंडीशन। अब आपके पास ये सोल्यूशन है, हम इनिशियल कंडीशन यूज कर रहे हैं एंड देन वी शैल ट्राई टू फाइंड दिस कांस्टेंट सी नॉट। इनिशियल कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर इनिशियली जो है टाइम 0 पे वो 100 डिग्री है, जो कि हमने मेजर किया है एक्सपेरिमेंटली किसी भी डिवाइस को यूज करते हुए, ठीक है। अब ये इनिशियल कंडीशन हम सॉल्यूशन में यूज करेंगे यूजिंग IC मींस इनिशियल कंडीशन, T ऑफ T इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 100 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि आप T0 और कैपिटल T को 100 पुट कर दें इन द सॉल्यूशन, ये आपके पास जो सॉल्यूशन आया था। तो अगर इसमें पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, 100 इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस सी नॉट ई रेस पावर 0, यहां पे ई रेस पावर 0 आ जाएगा। अब ई रेस पावर 0 क्या होगा, 1, और सी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 डिग्री। सी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 डिग्री, क्योंकि ये 100 डिग्री, ठीक है। अब सी नॉट की वैल्यू आप you have to put it back in the solution which you have calculated here. तो आपके पास यहां पे सी नॉट की जगह क्या आ जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। अब आप के पास सॉल्यूशन जो है उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। और जो पहले आपके पास विद सी नॉट जो सॉल्यूशन था वो आपके पास, उसको हम क्या कहेंगे, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन, या उसको जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। एंड दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन और वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन। ये वाला सॉल्यूशन जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन, या इसको क्या कहेंगे, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन। एंड दिस सॉल्यूशन इज व्हाट, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है वो इंप्लीमेंट हुई है और इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, अब कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। Particular solution can be obtained or should be obtained from the general solution by choosing some particular value of that arbitrary constant c, ठीक है। अब यहां पे आपके पास जो जनरल सॉल्यूशन था उसमें c नॉट की वैल्यू हमने 70 डिग्री ले ली, मतलब 70 ले ली। c नॉट की कोई भी वैल्यू हो सकती है रियल लाइन में से, रियल नंबर्स में से। तो c नॉट की वैल्यू हमने 70 अगर ले ली तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ली ना हमने, तो जनरल सॉल्यूशन सी नॉट के साथ होगा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब हम सी नॉट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लेंगे। सो दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन which doesn't contain any arbitrary constant is called particular solution, ठीक है। और वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन भी कहेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। सर जी सर के की वैल्यू हाफ हमने ऐसे अज्यूम की है। जी हाँ, अस्यूम किए, और ठीक है। के की वैल्यू बेसिकली डिपेंड करेगी
जो आपके पास मटेरियल है जिसमें टेम्परेचर का रेट ऑफ चेंज आप देख रहे हैं, उसकी हीट कैपेसिटी पे और कुछ और कांस्टेंट्स हैं जिस पे ये डिपेंड करती है। तो आप फिजिकली इसको देखें इस प्रॉब्लम को, तो के जो है वो चाय के लिए या पानी के लिए के की फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है। यू कैन सर्च इट ऑन गूगल कि वाटर के लिए के की वैल्यू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है बेसिकली ये, तो आप उसकी वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। If you have any question, you can ask me. So what we have learned here, separable differential equations, how to solve them, what is one parameter family of solution, what is two parameter family of solution, and what is n parameter family of solution, what is explicit solution, what is implicit solution, what is general solution, and what is particular solution. Particular solution, I'm going to repeat it. Particular solution is a solution which does not contain any arbitrary constant, and it can be obtained from the general solution, or it should be obtained from the general solution by taking some particular value of that arbitrary constant C. So this is what we call a particular solution. If you have any question, you can ask me. अब देखिए, आपके पास जो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे किसी भी जनरल सॉल्यूशन में जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसमें से जो आपके जो फिजिकल फिनोमेना है जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, उसके रिलेटेड जो सॉल्यूशन होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे? बाय डिफाइनिंग सम एडिशनल कंडीशन अलोंग विद द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। वो एडिशनल कंडीशन इनिशियल टाइम पे भी हो सकती है, किसी मिडिल टाइम पे भी हो सकती है, फाइनल टाइम पे भी हो सकती है, ठीक है। बट नॉर्मली इट इज easy to define condition at the start of that physical process or physical phenomena. जैसे कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में हमने जो ही चाय डाली तो हमारे पास टेम्परेचर मेजर करने की डिवाइसेस हैं, हम उसका इनिशियल टेम्परेचर मेजर करके वो कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं, सो दैट कि हमारा जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। अदरवाइज हमारे पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस में से कौन सा वाला सॉल्यूशन हमारे पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा ये हमें नहीं पता। तो हम एक एडिशनल कंडीशन डिफाइन करते हैं विच इज रिलेटेड टू और पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे कि हमने एक चाय का कप लिया, तो ये हमारा प्रॉब्लम जो है वो चाय के कप से स्टार्ट हो रहा है। टेम्परेचर हमने उसका देखना है कि क्या रेट ऑफ चेंज है, कितनी देर में चाय का कप जो है वो रूम टेम्परेचर के साथ बेसिकली कोइंसाइड कर जाएगा। ठंडी हो जाती है ना चाय, जब आप चाय को छोड़ दें यहाँ पे, तो आफ्टर सम टाइम वो रूम टेम्परेचर के साथ क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज हमने कैलकुलेट करना है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन वैसे तो उसका इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हमारे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए है उसके लिए हमें एक एडिशनल कंडीशन साथ में उसके डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम एडिशनल कंडीशन डिफाइन करते हैं यहाँ पे भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, तो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस में से जो हमारे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिलेटेड सॉल्यूशन होगा, वी कैन फाइंड दैट सॉल्यूशन। आई होप यू गेट इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। अच्छा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ अगर हम एडिशनल कंडीशन को डिफाइन करें तो उसको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, या इन शॉर्ट इसको हम IVP लिखते हैं, ठीक है। IVPs इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर dy by dx is equal to f of x y, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है which we need to solve subject to
I see initial condition y at some initial value of x is equal to some initial value of y. ठीक है, ये हमने एक initial condition define कर दी along with the differential equation. Then these set of two equations है ना basically. तो इसको हम as a whole क्या कहेंगे? This is called first order initial value problem. ठीक है, जैसे कि हमने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में डिफाइन किया था. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसकी? डी कैपिटल टी बाई डी टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के टाइम्स टी माइनस टी एम along with t at 0, t at time 0 is equal to 100-degree temperature. ठीक है, so this is an example of initial value problem. Initial value problem में आपके पास फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके साथ इनिशियल कंडीशन हमने डिफाइन की. ये इनिशियल कंडीशन क्या करती है? दिस हेल्प अस टू फाइंड द आर्बिट्ररी कांस्टेंट. ठीक है, और ये हमें जो पर्टिकुलर फिजिकल फिनोमेना है जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसके रिलेटेड हमें आंसर देगी. अदरवाइज हमारे पास इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस होंगे एंड वी डोंट नो which solution is suitable for our physical problem which we are discussing. ठीक है, I hope you get it. If you have any question, you can ask me. Chat window में is there any question? No, that's ठीक. Now, this is basically initial value problem of first order. इस तरह second order initial value problem हम define कर सकते हैं. Let me define it on the other board. Yeah. डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर या टी स्केयर कोई भी आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं. इट इज बेसिकली डिफाइंड बाय एक्स वाई वाई डैश. ये हमारे पास क्या है? एक सेकंड ऑर्डर जनरल फॉर्म ऑफ अ सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है, अब आपके पास ये क्या है? सेकंड ऑर्डर है. इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे? 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे. तो हमारे पास एक कंडीशन के साथ तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, तो हमें कितनी कंडीशंस डिफाइन करनी पड़ेंगी? 2 कंडीशंस डिफाइन करनी पड़ेगी. ठीक है, सब्जेक्ट टू अगर हम इसको आई सीज, अब आपके पास 2 इनिशियल कंडीशंस होंगी. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन वी डिफाइन इट ऑन द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स नॉट, वट एवर एक्स नॉट की जो भी इनिशियल वैल्यू है और y की इनिशियल वैल्यू. ठीक है, एक कंडीशन ही हमने डिफाइन की. दूसरी कंडीशन देखें, एक दफा इंटीग्रेट करेंगे तो y डैश आ जाएगा, दूसरी दफा इंटीग्रेट करेंगे तो y आएगा. यही है ना? तो एक कंडीशन हमारे पास y पे होनी चाहिए और एक कंडीशन हमारे पास y डैश पे होनी चाहिए, और वो भी इनिशियल वैल्यू ऑफ x पे. और अगर ये y नॉट है तो इसको आप y1 कह दें. तो आपके पास y1 और y नॉट जो है ये कांस्टेंट्स होंगे, x नॉट भी कांस्टेंट होगा. मींस बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है या डिफरेंशियल इक्वेशन टाइम इंटरवल पे डिफाइन होती है. x आप कह सकते हो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x नॉट, लेस देन इक्वल टू मे बी x की जो फाइनल वैल्यू है x मे बी f. इसको हम मजीद इंटरवल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या इंटरवल ऑफ सॉल्यूशंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे होपफुली इन द नेक्स्ट लेक्चर. फॉर द टाइम बीइंग आप इसको रहने दें.
आप ये देखें कि जब एक दफा इंटीग्रेट करेंगे इसको तो y डैश आएगा, उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, उस y डैश के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए हमने ये कंडीशन डिफाइन की। फिर दूसरी दफा इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास y आएगा, फिर उसमें एक और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने ये कंडीशन डिफाइन की। तो यू नीड टू डिफाइन टू इनिशियल कंडीशंस in the second order differential equation. So this equation along with these two conditions uh, is an initial value problem of second order. ठीक है? So this is second order initial value problem. अगर इसको हम जनरलाइज करें इस कॉन्सेप्ट को, तो nth ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए आपके पास क्या होगा? आपके पास nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, dy by d x n is equal to f of x y y dash so on y n minus 1 dash. ये इसकी जनरल नोटेशन होगी, ठीक है, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। और कितनी इनिशियल कंडीशन हमें चाहिए होंगी? सब्जेक्ट टू ICs y पे चाहिए होगी, y of x naught is, you can say alpha naught, y dash at x naught is alpha 1 and so on, y n minus 1th dash at x naught is alpha n minus 1। नहीं, हाँ ठीक। तो आपके पास ये कितनी कंडीशंस होगी? n कंडीशंस होंगी, क्योंकि इसमें n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे, तो उन n आर्बिट्ररी कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए आपके पास n इनिशियल कंडीशन होनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड nth ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। So these are basically initial value problems, and we can solve them by using first the separable technique. In the next lecture, we shall discuss some other techniques, maybe linear differential equation and exact differential equations, some other techniques to solve first order differential equations. For the time being, we are only discussing how to solve first order ODEs and first order initial value problems. Now tell me if you have any question, you can ask me. You people, if you have any question, you can ask me. Some other types of solutions which we need to discuss here is, the first one is trivial solution. What is the trivial solution of a differential equation? Trivial solution. अगर आपके पास कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल you can say that dy by dx is equal to some function of xy, ठीक है, आप कह सकते हैं xy, ठीक है। अब y is equal to 0 is a solution of this differential equation. अगर आप y को 0 पुट करें तो दोनों साइड्स इक्वेशन की क्या होती हैं? दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। Sorry, let me change the board. Trivial solution of any differential equation of any order. अगर y is equal to 0, if y is equal to 0 satisfies the given ODE of any order, it is called trivial solution. ठीक है,
अगर आपके पास ये ओडी या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई, तो अब y0 यहाँ पे पुट करें तो दोनों साइड्स क्या आ जाएंगी, बेसिकली 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो ये सोल्यूशन एक तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट इज अ ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद हमने एक्सप्लिसिट सोल्यूशन देखा। एक्सप्लिसिट सोल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, जो कि हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में एक्सप्लिसिटली लिख सकें। इम्प्लिसिट सोल्यूशन होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन क्या होगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो उसका जो सोल्यूशन है उसको हम जनरल सोल्यूशन या वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सोल्यूशन कहेंगे। और पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, a solution which is obtained from the general solution by taking some particular value of that arbitrary constant c, and that is called a particular solution. इसके अलावा we have to discuss what is a singular solution. I stop here for today. If you have any, I give you few minutes for your questions. If you have any question, you can ask me. Sir, जरूरी तो नहीं है कि हर डिफरेंशियल